So hello everybody and welcome back to my YouTube channel, and today's video is going to be about how to make a business idea presentation. So many of us feel to be an entrepreneur. काफी बार हम सोचते हैं कि हम entrepreneurship करेंगे and अपना business idea कहीं pitch करने जाना हो, maybe Shark Tank or any such events में. तो हम जब pitch करने जाते हैं, what are the components जो आपकी PPT में होने चाहिए? What are the factors that influence you as an entrepreneur? So today we are going to discuss those slides as well, and I'll be sharing across few business idea templates in my description section and in the comment section. So I'll be pinning that message. So अगर आपको कभी बनानी हो, so you can choose those templates. So the first slide, it should have a catchy tagline. जैसे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. सब ऐसी tagline choose करो अपनी कंपनी की, अपने ब्रांड की, so that वो ब्रांड नेम उससे कंपनी टैगलाइन से जाना जाए. नेम ऑफ द कंपनी अच्छे से, उसकी द डिजाइन शुड बी अप्रोप्रिएट, यूज सम आर्टिस्टिक 3D आर्ट और समथिंग, राइट. जैसे मैकडॉनल्ड्स में एम जो है वो शेडेड इफेक्ट में है, राइट, समथिंग लाइक दैट. एंड कलर्स, जो कलर्स यूज कर रहे हो, यूज द कलर व्हील, कलर पैलेट. ऐसे ही रैंडमली कोई भी कलर कॉम्बिनेशन नहीं. देयर इज अ कलर व्हील एंड वो कलर व्हील के हिसाब से आप कलर चूज करते हो. देन कम्स द लोगो. जो आप लोगो डिजाइन करते हो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए एंड इट शुड बी यूनिक. इट शुडंट बी प्लेगराइज्ड टू एनी अदर लोगो. सो वो लोगो का कुछ मीनिंग होना चाहिए. इट शुड नॉट बी ऐसे रैंडमली. और ऐसा लोगो बनाओ जो कनेक्ट करे ऑडियंस, राइट, समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव. लाइक KFC का आप लोगो देखो, आप एडिडास का लोगो देखो, है ना. आप टेक एनी कंपनी, एनी ब्रांड, सी द लोगो, you will find it attractive, right? Flow of content. So the next slide after your main slide is the flow of contents that you choose, right? So your problem statement, और आपने उस problem statement में कौन सा solution propose किया है. So propose solution, market sizing, competitor analysis, SWOT analysis, product portfolio, business model, roadmap. We are going to discuss everything in detail in the next slide, so do not worry. Problem statement, आखिर problem कहाँ है? Gap analysis. तो इफ यू आर डूइंग सम रिसर्च, इफ यू आर डूइंग ब्रिंगिंग अप सम प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कुछ लैग कर रहा होगा, कहीं ना कोई डिसएडवांटेज होगा. तो वो आपका प्रोडक्ट कैसे उस पर अच्छा काम करता है, आपको वो देखना है. सो वो इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा अगर हम बात करें उसकी. So problem statement is important from that point of view. Moving ahead, proposed solution. So proposed solution जो है वो आप जब when you are giving any particular solution of a particular problem, so how is your particular solution catering to that problem? आप क्या क्या चीजें solve कर पा रहे हो and वो क्या क्या चीजें benefit करती है. So आपको proposed solution एक slide अच्छे से, novelty, what are the USP, unique selling propositions of your particular product or your particular idea. Next comes the statistics. So statistics में कितने percent of the लोग परेशान है, और how many people are suffering, how many people are using, right? So आप customer acquisition cost, CAC, market sizing करते हैं, so जिससे आपको पता चलेगा कि how many people are likely to take your product, to become your consumer. Next up we have market sizing that I already mentioned, कि आप एक pie chart, bar graph, any form में कोई रो and appropriate references दो, because referencing is very important. आप ऐसी randomly कोई भी साइट से उठा के कोई भी डेटा नहीं. UN, WHO, AHA, use data from certain renowned sites. Then TAM Samsung, total addressable market and all, ये सब काफी important है. So your TAM Samsung is very important while you are doing your market sizing, and आगे वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी काफी आपकी हेल्प करता है कि आपको कब कितना प्रोडक्ट एक्सटेंशन करना चाहिए, प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन करना चाहिए या नहीं. तो आपका सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, सॉम, दैट इज. सो ऑल दोस थिंग्स आर important. Moving ahead, product and market positioning. So there is STP, segmentation, targeting, positioning. आप अलग अलग सेगमेंटेशन करते हो, डेमोग्राफिक, जोग्राफिक, बिहेवियरल. टारगेट, यू चूज अ पर्टिकुलर टारगेट जहां पे जिस सेगमेंट में आपको टारगेट करना है. पोजीशन, एंड फाइनली आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हो. जैसे वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई हैव मेंशन्ड हियर इन द स्लाइड इज फॉर द बेबी प्रोडक्ट्स. सो डिफरेंट industries are there, like nutritious products, skin care products, grooming products, safety and hygiene. तो कौन से competitors है, क्या क्या provide कर रहे हैं, what are their different facilities, this all is mentioned in this particular PPT.
नेक्स्ट अप, सो दिस इज अगेन अ कॉम्पिटिटर एनालिसिस. सो आपको अपने कंपनी के यूएसपी या अपने कंपनी के पेक्युलैरिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स खुल के लानी है, राइट. सो ऑब्वियसली काफी सारे कॉम्पिटिटर्स भी होंगे. सो आपकी कंपनी के पॉइंट्स, ओवरव्यू, एडवांटेजेस, टारगेट मार्केट, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, वेदर यू आर गोइंग फॉर पेनिट्रेशन, इकोनॉमिकल, स्किमिंग, कैसे टाइप का मार्केटिंग आप सोच रहे हो, राइट. स्किमिंग और पेनिट्रेशन. एंड प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, इकोनॉमिकल प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, लग्जरी प्राइसिंग, और एनी अदर प्राइसिंग थिंग दैट यू आर चूजिंग फॉर. सो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, राइट. सो मार्केटिंग कैन बी ऑनलाइन और ऑफलाइन. ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स भी बोलते हैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग, राइट. सो जैसे काफी बिल बोर्ड्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, या यूट्यूब पे एड्स होते हैं. दीज आर ऑल प्रमोशन स्ट्रेटेजीज, मार्केटिंग के पार्ट ही है ये सब. सब कुछ प्रमोट करने के लिए यूज होता है, राइट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. यूट्यूब मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, अब आजकल तो दैट इज बिग मेजर सोर्स, especially for DIY products, that is do it yourself. So this is what the image represents. Next up, SWOT analysis. So strength, weakness, opportunity and threats. ये काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ भी लैक कर रहा होगा, आगे वो कैसे काम करेगा. जैसे अपॉर्चुनिटीज, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, देयर आर लॉट ऑफ फंडिंग, बार्क, डीबीटी, सर्व, umpteen number of grants that are available, right. It's on you that आप कैसे उससे प्रोडक्ट को आगे लेके जा सकते हो. थ्रेट्स, कोई और कंपनी कहीं कुछ और मॉडिफाई करके मे बी आ जाए, तो यू नीड टू डू अ प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस. जैसे हम BCG मैट्रिक्स करते हैं, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स, राइट. सो देन वी आल्सो सी फॉर माइकल ई पोर्टर्स 5 फोर्सेस. तो आपको पता चलता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, सप्लायर्स, है ना. सो ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो फ्रॉम ऑल दिस पर्टिकुलर. Next up, roadmap. So roadmap में आपको, you have to write a complete timeline of how you are going to launch your product, right from its market research, R&D, so market analysis, pre-product analysis, yeah, all those particular things that you need to do, market search, trend analysis, and all these things you perform till up to post launch monitoring and feedback analysis. So तब तक आप कैसे एक particular follow कर रहे हो trend को. मैजिक सॉस. सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैजिक सॉस. सो मैजिक सॉस इज समथिंग, एक ऐसी चीज दैट इज, यू नो, दैट इज डिस्क्राइबिंग योर सीक्रेट, योर टेक्नोलॉजी, योर मेजरली आपकी स्पेशल यूएसपी क्या है प्रोडक्ट की. सो मैजिक सॉस की एक पर्टिकुलर स्लाइड वोंट डू हार्म, इट विल अट्रैक्ट द ऑडियंस. Then template of business model. So business model is very important whenever we speak about an entrepreneur. So B2B, B2C, business to business, business to consumer, business to consumer, B2B2C, ये भी एक मॉडल होता है, हाइब्रिड मॉडल. सो देर आर सो मेनी डिफरेंट मॉडल्स. सो यू नीड टू बी वेरी, एंड सो दैट आपके मार्केटिंग चैनल्स, इंटरमीडियरीज लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, सुपर स्टॉकिस्ट, सप्लायर्स, आपको सबका आइडिया हो, रिटेलर्स, राइट. देन रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कौन से जगह से आपका रेवेन्यू आ सकता है, जैसे ऑनलाइन चैनल्स पे, Amazon, फ्लिपकार्ट, दैट इज वन ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम्स. आपके या तो क्लाउड किचन, अगर कोई फूड इंडस्ट्री है तो क्लाउड किचन एक रेवेन्यू स्ट्रीम है. ऑफलाइन स्टोर्स एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, बट ऑफलाइन स्टोर्स में अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो मैटर करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. सो आपको वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है. देन लेबरर्स, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो टाइप के लेबरर्स होते हैं दैट कम इनटू पिक्चर. सो अगेन उसका कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट, राइट, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग का कॉस्ट, है ना, रेंटिंग, अगर आपका रेंट पर है तो रेंटिंग कॉस्ट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कमिंग इनटू द पोजीशन. की propositions, की पार्टनर्स, acquisitions or mergers या something, any partnership events, so that you can, like PPP, public private partnerships. So ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, तो काफी गेन कर रहा है इंपॉर्टेंस. की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज, कस्टमर रिलेशनशिप्स कैसे हैं, channels, marketing intermediates that I already mentioned previously. Then GTM. GTM is go to market plan. So आपका go to market plan तीन चीजों पे बेस्ड है. What, who, how. What are you going to sell to the market? Who are you going to sell? And how are you going to sell? कैसे बेचोगे, किसको बेचोगे, और क्या बेचोगे. ये तीनों चीजें काफी जरूरी है, सो दैट आपका कस्टमर, आप अट्रैक्ट कर सके कस्टमर्स को, राइट. सो और आपका MVP. सो अगर इफ यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, MVP, मैक्सिमम वैल्यूड प्रोडक्ट, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट बी नोइंग. देन COGS, ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स.
देन CAC कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो अगर आपकी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका सिंगल कस्टमर कितने हैं, रिपीट कस्टमर्स कितने हैं, एबिटा कितना है, पैट वैल्यू कितनी है, PMF प्रोडक्ट मार्केट फिट, PMF है ना, that is also very important. All these things, then website trafficking, all these things you should be aware of. Moving ahead, GTM roadmap. So GTM roadmap is based upon basically 5 things: provocation, discovery, diagnosis, design and recommendations. So अलग-अलग parameters है जिसके basis पे भी judge. Key question, focus, inputs, outcomes. So what are we trying to accomplish? Outcomes, aims, objectives, market data का review करना, analyze करना, validation of that goal, what is the market potentials, what is the sustainability, right? Driving force क्या है आपका, major driving force of the company. All these things you should be identifying. Market channeling options, prioritize करना है आपको अपने marketing channels को, right? So all these things you should be knowing. Moving ahead, channel strategy. So channel strategy can be direct or indirect. So e-commerce, direct personal selling, retail, इनडायरेक्ट सेलिंग, प्राइवेट लेबलिंग, राइट? सो ये सारी स्ट्रेटजीज है जो यूज करते हैं हम काफी बार. सो अलग अलग मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रिटेलर, होलसेलर, सुपर स्टॉकिस्ट, है ना. सो ये सारे इन्वॉल्व होते हैं आपके मार्केटिंग की. जब हम बात करें OEM मार्केटिंग, एक ऐसा प्रोसेस है कस्टमर जो सर्च करते हैं उन्हें वही मिलता है, दैट इज OEM मार्केटिंग, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. सो इट इज अ प्रोसेस इन विच ऐप एडवर्टीजमेंट्स की जैसा, तो काफी एप्स में कुछ एडवर्टीजमेंट्स आती है, राइट? तो दे आर अ काइंड ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. सो SEO which is search engine optimization, right? So गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीजें टॉप उस पे आती है. स्विगी जोमेटो पे भी ऊपर से कुछ ना कुछ उनका स्ट्रेटजी देखो. आपने स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट का ऐप डाउनलोड किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ आती होगी, हिंदी में लिखा हुआ होता है, क्या आप भूखे हो, क्या आपको भूख सता रही है, ऐसा समथिंग और दी अदर, ऐसा टैगी कैची. तो आपको भूख ना भी लगी हो तो भी वो देख के आपको योर माइंड स्टार्ट्स ट्रिगरिंग, मुझे खाना है, मुझे कुछ तो खाना है. सो दैट इज हाउ यू वर्क. वेबसाइट डिजाइन, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जो कस्टमर देख रहा है, मैं जब आप एक वेबसाइट पे कुछ खरीद, जैसे अमेजोन, सो मुझे यूजर फ्रेंडली चाहिए अप्रोच के, जिससे मैं इजीली सर्च कर सकूं. कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के कस्टमर का भी नुकसान है, आपका भी. ब्लॉगिंग, सो व्हेन यू आर राइटिंग ब्लॉग्स ऑन अ पर्टिकुलर गूगल और कहीं पर भी, कोई भी पर्टिकुलर सर्च इंजन पर, तो वो ब्लॉग्स पढ़ के कुछ लोग गेट्स इंस्पायर्ड. सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स ट्विटर, लिंक्डइन आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग. पेड एडवर्टाइजमेंट्स, सो लॉट ऑफ पेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन डिफरेंट यूट्यूब पे, अलग अलग चैनल्स पे आप करवा सकते हो, एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से. ईमेल मार्केटिंग और वर्ड ऑफ माउथ, WM, लेट वर्ड ऑफ माउथ भी काफी अच्छा एंड इम्पोर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. Then competitive analysis. So I have already shown you one slide. These are few more points extra वाले जो आप add कर सकते हो. Existence year, location, products and service, quality, price, services, warranty, reputation, funnel of sales, है ना, ये जो funnel बनता है sales का. FI, year on year, Y on Y growth, year on year growth कितनी है, financial year, जैसे काफी एक पर्टिकुलर क्वार्टर होता है, सो दिस क्वार्टर में हाउ मच सेल्स, दिस क्वार्टर में हाउ मच सेल्स. सो जब आप शार्क टैंक देखोगे तब आपको ये सब चीजें, you'll be coming to know, you'll be acquainted with these terminologies. नहीं तो आपको नहीं पता चलेगी ये सब चीजें. टाइमलाइन, एक प्रॉपर टाइमलाइन बनाओ कि फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर व्हाट इज योर प्लान, हाउ आर यू गोइंग टू वर्क सिस्टमैटिक वे में, सो जिसको आप पिच कर रहे हो वो बंदा कन्विंस हो जाए. नेक्स्ट अप, मेक सम चार्ट्स, ग्राफ्स, समथिंग दैट सामने वाले को अट्रैक्ट करे. सो यू कैन मेक RSM, which is response surface methodology, surface response plot, SRP, contour plot, bar graph, line chart, pie chart, bar graph, radar chart, scatter chart, bubble chart. काफी ज्यादा चार्ट्स, ग्राफ्स, अलग अलग 3D प्रोसेसेस है टू रिप्रेजेंट योर डेटा. सो आप डेटा को रिप्रेजेंट जितना क्रिएटिवली करोगे उतना वो आपको ज्यादा एज देगा, कॉम्पिटिटिव एज. सो यस, ट्राई टू यूज एंड इनकॉर्पोरेट सच थिंग्स. सो इन्फोग्राफिक्स की मैं बात करूं, सो यस, इन्फोग्राफिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, जैसे ये देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, हाउ नीटली इट लुक्स. सो आपके प्रॉपर मेथोडोलॉजीज क्लियर होने चाहिए, एंड दीज आर ऑल एडिटेबल. स्वॉट एनालिसिस की एक स्लाइड है, ये अलग है, कैसे आप अलग अलग तरीके से स्वॉट एनालिसिस लिख सकते हो.
rather than writing paragraphs. See how appealing it is. आपको देख के ही मन करेगा कि इसे पढ़ लूं. देखो, एक इतने अच्छे इन्फोग्राफिक्स यूज करने हैं, इतने ज्यादा अच्छा क्लिप आर्ट, use all of these things, smart art, clip art, है ना, जिससे you can make your PPT good. See how efficiently this SWOT analysis. Next up, एक particular अगर आपको कोई चीज को represent करना है, कोई ऐसे headers देना है या कोई bullet points है, तो see आप ऐसे एक दे सकते हो particular professional उसमें, ताकि वो काफी appealing, captivating लगता है. Then path to success का कैसे आप जाओगे, है ना, ये सब चीजें जो है आई विल बी शेयरिंग अक्रॉस ये सारे पीपीटीज टेम्पलेट्स फॉर फ्री, सो आप एडिट कर सको इस पे, है ना. सी हाउ हाउ नाइसली ये सब अपीयर हो रहा है. देन आपके फुटपाथ्स अहेड, अगेन SWOT एनालिसिस, देन ये अगेन स्टेप वाइज एक्सपेरिमेंटल टाइमलाइन और आप कैसे मूव अहेड करोगे. अगेन ये वही है सक्सेस का. देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो कोई ना कोई एक टीम होती है, एक हायरार्की. Whenever you start a company, of course there's a CEO, there's a founder, there's a management head, there's a chief executive, there are a lot of different posts, right? So एक हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसको ऑर्गेनोग्राम बोलते हैं. सो होगा ना कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, मैनेजर, वाइस समथिंग. सो वो एक अच्छा सा, फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेजिग्नेटेड उनके. फिर आप ये देखो, ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट द डेटा. तो देख के ही समझ जाता है, एंड इट्स वेरी क्लीन, है ना. देन प्रोजेक्ट प्लानिंग. एक प्रोजेक्ट है तो कौन, इफ देयर आर 4 to 5 people in a company, so who looks after what, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, मार्केटिंग, है ना, ऑल दिस थिंग्स कौन सोचता है. प्रॉफिट शेयर्स एंड वगैरह. सो ये सब चीजें उसकी है. नेक्स्ट अगेन ये टाइमलाइन, ये बिजनेस मॉडल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड. बिजनेस मॉडल में आपका मॉडल क्या है, आपके चैनल्स क्या है, आपके कस्टमर रिलेशनशिप, सेगमेंट्स, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज, की पार्टनर्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर. सो आपको कॉस्ट ब्रेकडाउन पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का. जैसे आप कोई चॉकलेट बना रहे हो, तो चॉकलेट बनाने के रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कितना है, पैकेजिंग का कितना है, स्टेबिलिटी, उसको स्टोर करने के लिए कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कितना है, इंटरमीडियरीज को कितना देना पड़ रहा है, मार्केटिंग में कितना दे रहे हो, कॉस्ट ब्रेकडाउन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो यू शुड बी वेल acquainted with this. सर्विसेज, व्हाट सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, है ना, उनको पता कैसे चलेगा आप कर क्या रहे हो. एक सर्विसेज का लिस्ट बना दो, सो दैट दे कम टू नो दैट हाँ यू प्रोवाइड दिस 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 सर्विस एट दिस इज दिस कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस, ये एक ऐसा पॉइंट है जब आपका लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, इसके ऊपर प्रॉफिट होने के चांसेस है. सो दैट इज अ पॉइंट. देयर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑल, दैट विल बी डिस्कसिंग मे बी आगे के डिटेल स्लाइड्स में बताऊंगा मैं आप लोगों को, है ना. तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए ब्रेक इवन, बिकॉज कोई भी जो इन्वेस्टर है वो आप में क्यों इन्वेस्ट करेगा, वो आपको पैसे क्यों देगा, उसका क्या फायदा. तो एग्जिट स्ट्रैटेजी, उसका एग्जिट जो है प्रॉफिट होना चाहिए, उसको नुकसान लेके नहीं जाना है. तो आपका ब्रेक इवन कितने साल में होगा. जैसे मैंने कंपनी खोली एंड सपोज इफ आई एम सेलिंग चॉकलेट, मैंने 20,000 की इन्वेस्टमेंट करी. अब 20,000 मेरे वापस कब आएंगे, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद.
वो जरूरी है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैं जब उतना सेल करने लगूंगा, मेरे कितने गुड्स और सेलिंग यूनिट्स, SKUs है ना, SKUs आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, SKU इज बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, कि आप कितने SKUs रखते हो, कितने सेल करते हो, क्या सिस्टम है, so that is also important. Sales and distribution, so you should be acquainted with the sales and distribution channels. Advertising and promotion, management planning काफी important है, right from your operations to your marketing, advertisement to your team overview to your inventory पे लोग फोकस नहीं करते, बट इन्वेंट्री काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, स्पेशली व्हेन यू हैव अ फ्रेंचाइज और यू हैव मल्टीपल आउटलेट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। सो एक इन्वेंट्री होना काफी जरूरी है। सो इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है, ऑपरेशन प्लानिंग प्रॉपरली, प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लान, आपका फाइनेंशियल एक अच्छा सा प्लान बता दो कि ये इतने इतने टाइम में ये चीजें होगी। टीम को इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि बंदा जब पिच कर रहा है, जब इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर आपके बिजनेस में तो इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो जो एंटरप्रेन्योर है, जो बंदा ने बिजनेस बनाया है, उस पे भी इन्वेस्ट करता है, तो वो आप पे भी इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करता है। तो उसे टीम के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी में कौन है, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सो सम व्हाट इंफॉर्मेशन, हु लुक्स आफ्टर व्हाट रोल, एंड दीज आर ऑल स्लाइड्स जो मैंने आपको दी है, ताकि आपको कुछ और डेटा डालना हो तो यू कैन ऐड ओवर हियर इन दीज स्लाइड्स। प्रॉपर वाला है ना, प्रॉपर अच्छे से स्टेप वाइज, सी हाउ जिगली इट इज। तो मतलब देखकर इन स्लाइड्स को ऐसे लगे कि भाई समझ आ जाए बंदे को। देन अगर कोई मोबाइल से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड स्लाइड्स है, दे कैन यूज दीज स्लाइड्स, राइट। ये है अगेन मैपिंग। सो ऐसे नंबर्स ना, इफ यू राइट नंबर्स इन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट साइज, इट इज वेरी मोनोटोनस एंड वेरी टीडियस टू लुक, कोई नहीं देखेगा। ऐसे ग्लोबल मैप बनाओ और इस पे अच्छे से ऐसे पॉइंटर्स दो कि यहाँ सपोज ये गुजरात, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट जो भी है, कि यहाँ इतना मार्केट इतना है, ऐसे नंबर्स अच्छे से बोल्ड करके कलरफुल लिखो। सो इतना मिलियन मार्केट है, 20 मिलियन मार्केट, तो अच्छा लगता है देखने में, है ना। ये अगेन इंफोग्राफिक स्टाइल है कि कहाँ कहाँ चीजें क्या क्या एडेड हो सकती है, अगेन अ सेम स्लाइड। देन टारगेट, तो एम, ऑब्जेक्टिव और टारगेट काफी क्लियर होना चाहिए कि यू आर टारगेटिंग टू मेक दिस कंपनी ग्लोबल। आपको इस कंपनी को ग्लोबल ले जाना है, ग्लोबलाइजेशन में, या नेशनल ही रखना है, या इंटरनेशनल ले जाना है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द विजन ऑफ योर कंपनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगेन वही पोर्टफोलियो है। सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस की मैं बात करूं, तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखते हो, जैसे प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, है ना। आप पूरे पोर्टफोलियो बताते हो अपने प्रोडक्ट का, कि अगर आपका सपोज रेडमी फोन है, तो अब रेडमी नोट 9, रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, क्या कर रहे हैं, वो लाइन को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, एक एक चीजें फीचर ऐड कर रहे हैं, लेकिन कंपनी तो वही है ना, रेडमी, सीरीज वही है ना, नोट 9, तो उसमें एक एक चीजें ऐड होती जा रही है, तो दैट इज व्हाट यू कॉल प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो और डिस्कस करेंगे हम मार्केटिंग से रिलेटेड अहेड ऑफ कोर्स, एज एंड व्हेन वी गेट टाइम। सो ये अगेन ये सारी स्लाइड्स है जो आप देख सकते हो। देन ये भी काफी अच्छी स्लाइड है ऑफ हाउ आप ईयर वाइज, मंथ वाइज अपना प्लान डिसाइड करते हो। So all these are slides that are available for free on various websites. So yeah, and lastly value proposition, product benefits. So बंदे का क्या क्या benefits हो सकते हैं। So that's it from today's video. I hope आप सबने बहुत सारा सीखा भी होगा, and आपके कोई भी doubts है तो feel free to drop them in the comment section. I'll be more than happy to answer them. And अगर आपके कुछ भी suggestions है, so please बिंदास लिखिएगा, I'll definitely try to incorporate in my next video. Thank you so much for watching the video. Do like, share, subscribe my channel for more such upcoming vlogs.